Good afternoon, friends. This video on one of the recommendation made by GST Council in their 45th GST Council meeting. What is the meaning of intermediary? A circular 159 dated 20th September 2021 is being issued, and they are clarifying the meaning of intermediary and thereby what is export of services and what is not export of services. Disputed point. Intermediary is being defined under section 2 subsection 13 of IGST Act. An intermediary means a broker or agent or any other person by whatever name called who is arranging or facilitating supply of goods or services or both, or securities between two or more persons, but does not include when someone is supplying goods or services or both on its own account. So this definition that they have carried forward, more or less same definition from service tax regime. Now to clarify, when we look at intermediary, who is intermediary? Important one. To take example further, and that is also being explained in the circular, इस सर्कुलर में भी उस एग्जाम्पल को लिया गया है. मान लीजिए यूएसए में एक सप्लायर है, फॉरेन सप्लायर. लेट्स से हिज नेम इज ए, और उसने बी को सप्लाई करना है, सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी इन इंडिया. अब उसने सी से कांटेक्ट किया और सी से कहा कि आप इंडिया में जितने भी कस्टमर हैं उनको आप डेवलप करो एंड यू शुड अरेंज एंड फैसिलिटेट. मैं यूएसए से इंडिया में सप्लाई करूंगा. सो ए इन यूएसए सप्लाइंग टू बी इन इंडिया, and there is C who is a person arranging and facilitating, who is developing Indian market and identifying the customer like B in India. C is an intermediary, उसने इंडिया में मार्केट डेवलप किया, got the customer B in India. Now A is a foreign supplier in USA going to supply to B in India. It is a main supply of goods. This is the main transaction. So what is the transaction of C who is only arranging and facilitating? जो कस्टमर आइडेंटिफाई कर रहा है, जब ए ने सप्लाई किया बी को, तो सी का काम था उस ट्रांजैक्शन को स्मूथली एग्जीक्यूट करवाना, फैसिलिटेटिंग. So C is only a intermediary, ancillary services provide कर रहा है, ancillary services between two person A USA to B India. तो अब इसके अंदर जब C इंडिया में बैठ के ये जो सर्विस दे रहा है, ये किसको दे रहा है? सर्विस दे रहा है A USA को. क्या इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस माना जाएगा? यही डिस्प्यूट है, एंड दैट इज व्हाट वी ऑल आर डिस्कसिंग. एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट, एंड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज आपको 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है. सप्लायर शुड बी लोकेटेड इन इंडिया, जो सी इंडिया में है. रिसिपिएंट शुड बी आउटसाइड इंडिया, ए यूएसए. Money should have been received in convertible foreign exchange. Money convertible foreign exchange में आता भी है सी के पास. Fourth condition, that place of supply must be outside India. अब ये प्रॉब्लम है. जब आप प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी में जाके देखेंगे ऑफ आईजीएसटी एक्ट, then place of supply is location of supplier जो इंडिया है, hence it is not export of services. That is what the dispute which is started
in service tax regime from October 1, 2014. And the carry forward provision, same provision को ने GST में carry forward कर लिया. सर्कुलर कहता भी है कि हमने सर्विस टैक्स के प्रोविजन को ही GST में ले लिया. अब इंटरमीडियरी जो सी इंडिया में है उसने सर्विसेज ए यूएसए को दी. ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्यों नहीं होगा? वी ऑल आर डिस्प्यूटिंग एंड डिबेटिंग, बट द सर्कुलर इज नॉट गोइंग इनटू दैट डिबेट. सर्कुलर सिर्फ ये समझा रहा है कि इंटरमीडियरी हम किसको मानेंगे? हु इज ओनली फैसिलिटेटिंग एंड अरेंजिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ और सिक्योरिटीज बिटवीन 2 or more person. बस इतनी बात समझा रहा है. और ये कह रहा है कि ऐसे ट्रांजैक्शन में 3 पार्टी होती हैं. 2 पार्टी जो मेन ट्रांजैक्शन A to B, A of USA to supply of goods to B in India, it's a main supply. एक एंसिलरी हुई जो C ने की, और जो एंसिलरी हुई उसी को हम इंटरमीडियरी कह रहे हैं, who is arranging और facilitating. बट इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम नहीं मानेंगे, ऐसा इस सर्कुलर में कहा है. और भी कई एग्जाम्पल उन्होंने दिए, वो एग्जाम्पल भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं. एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि मान लीजिए ए यूएसए से आपको सॉफ्टवेयर, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है. सो ए यूएसए कॉन्ट्रैक्टिंग बी इन इंडिया फॉर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर. हो सकता है ना? जब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात है तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर भी सप्लाई करेंगे और उसको कस्टमाइज भी करेंगे. एम आई राइट? कस्टमाइज भी करेंगे. अब इस केस में आप देखिए, जब कस्टमाइज करना है तो ए ने सॉफ्टवेयर बी को दे दिया इंडिया में. अब जब कस्टमाइज करना है तो ए ने सी को कॉन्टैक्ट किया, सी जो इंडिया में है, और उससे कहा कि भाई इस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करना, यू गो टू क्लाइंट साइट बी, उनसे आप बात करो और जो भी कस्टमाइज करना है उस सॉफ्टवेयर पे आप कस्टमाइज करो. तो सी बी की लोकेशन पे जाता है, बी से बात करता है, उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करता है एज पर बी की जो नीड है, एज पर क्लाइंट एंड कस्टमर नीड. इसको हम इंटरमीडियरी नहीं मानेंगे, बिकॉज सी इज गिविंग हिज ओन सर्विसेस. It is not only arranging and facilitating. C is giving his own services of software development services. दे क्यों रहा था? क्योंकि A के साथ कॉन्ट्रैक्ट है उसका. तो C डायरेक्टली A को बिलिंग कर रहा है, B को बिल नहीं कर रहा. B जो इंडिया में उसको बिल नहीं कर रहा. C ने जो कस्टमाइजेशन किया वो A के कहने पे किया है, A USA. अब ये सी बिल रेज करेगा, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा या नहीं होगा, यही क्वेश्चन है. जब ये इंटरमीडियरी नहीं है, सी इंटरमीडियरी नहीं है, क्योंकि ही इज प्रोवाइडिंग मेन सर्विसेज. इट इज नॉट एंसिलरी, अरेंजिंग और फैसिलिटेटिंग. हैंस इन दैट केस इंटरमीडियरी का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा एंड इट विल बी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज. सेकेंड एग्जाम्पल आपको दिया. एक थर्ड एग्जाम्पल उन्होंने ड्रॉ किया कि मान लीजिए यूएसए में एक कंपनी है जो सप्लाई ऑफ गुड्स करती है ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया. अब पूरे वर्ल्ड से उनके पास कस्टमर केयर की क्वेरीज आती हैं. तो उनने इंडियन ने कंपनी से कांटेक्ट किया. सो ए यूएसए कांटेक्टिंग बी कि भाई हमें आपसे कस्टमर केयर बीपीओ सर्विसेज चाहिए. बीपीओ सर्विसेज जिसमें आप हमारे कस्टमर के कॉल रिसीव करेंगे, उनको रिप्लाई करेंगे, उनको असिस्ट करेंगे. तो क्या जो बी की सर्विसेज हैं उसको इंटरमीडियरी माना जाए? क्योंकि ए कईयों को सप्लाई कर रहा होगा अक्रॉस द वर्ल्ड. तो सर्कुलर बोलता है ऐसे केस में बीपीओ, ही इज प्रोवाइडिंग मेन सर्विस, कस्टमर केयर सर्विस थ्रू बीपीओ. इसको हम इंटरमीडियरी नहीं मानेंगे. हेंस सेक्शन 13 के अंदर ऑफ आईजीएसटी एक्ट एज पर प्लेस ऑफ सप्लाई इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हम ट्रीट कर सकते हैं. ये क्लैरिटी दी. एक एग्जाम्पल और दिया जो आपसे मैं डिस्कस कर लूँ. वो एग्जाम्पल ये था और जिसमें मेरा डिबेट है और
मैं आपको क्लैरिफाई भी करना चाहता हूं कि एज पर सर्कुलर अब जब आप पढ़ें ना, तो सारी चीज ऐसे मत पढ़िए जैसा लिखा हुआ है, उसकी तह तक जाइए, उसके अंदर तक जाइए, तब आपको समझ में आएगा। अब वो क्या है वो आप समझिए कि मान लीजिए ए यूएसए ने सप्लाई की मशीन की along with erection, commissioning and installation या एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ए ने किसको सप्लाई की? बी इंडिया को। अब यहां पे इंस्टॉलेशन भी होनी है इंडिया में, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन एंड एएमसी कॉन्ट्रैक्ट, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी होना है। तो उन्होंने सी को कॉन्टैक्ट किया इन इंडिया कि आप इरेक्शन कमिश्निंग कर दो, इरेक्शन कमिश्निंग कर दो, एंड एएमसी कॉन्ट्रैक्ट भी आप ही एग्जीक्यूट करो इंडिया में। अब सी ने इरेक्शन और कमिश्निंग की इंडिया में, एएमसी कॉन्ट्रैक्ट भी उनने ही एग्जीक्यूट किया। किसके कहने पे? ए के कहने पे, ए ऑफ यूएसए। तो सी ने जो सर्विस दी, क्या उसको हम अरेंजिंग एंड फैसिलिटेटिंग कहेंगे? नहीं कहेंगे, क्वाइट ऑब्वियस, नहीं कहेंगे, क्लैरिफाइड। तो सी ने मेन सर्विस दी। क्या मेन सर्विस दी? इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन और टूल, और एएमसी फॉर टूल्स और मशीन, यही दी। क्या इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट किया जाएगा? इंटरमीडियरी से तो बाहर हो गई, इट इज आउट फ्रॉम इंटरमीडियरी डेफिनेशन, बट क्या एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज से बाहर हो गया? इस पार्ट को सर्कुलर ने क्लैरिफाई नहीं किया। बट जब आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 ऑफ आईजीएसटी एक्ट देखेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वेयर गुड्स आर मेड फिजिकली अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस टू ए सप्लायर ऑफ सर्विस, देन प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर परफॉर्म्ड। तो सर्विसेज आपने कहां परफॉर्म्ड की? इंडिया में। सी ने कहां परफॉर्म की? इंडिया में। एंड गुड्स आर मेड अवेलेबल, इरेक्शन, कमिश्निंग, इंस्टॉलेशन करने के लिए दीज गुड्स वे आर मेड अवेलेबल टू द सप्लायर, सी को। यानी ये मशीन या टूल जो बी के पास था, दैट मेड अवेलेबल टू द सप्लायर सी फॉर इरेक्शन, कमिश्निंग एंड इंस्टॉलेशन। इवन एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी दीज गुड्स वे आर मेड अवेलेबल बाय द रिसिपिएंट to the supplier, and thereby, अब आप सेक्शन 13 सबसेक्शन 3 में जाएंगे, तो that is not export of services because place of supply is in India. So सर्कुलर इतनी बात डिस्कस नहीं करता। सर्कुलर कहता है कि इंटरमीडियरी नहीं होगा, बट प्लेस ऑफ सप्लाई के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है कि एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है या नहीं है। तो मैंने आपको क्लैरिटी देने की कोशिश की। अब मैं एक ब्रॉडर डिफिनीशन पे आता हूं। देखिए, इस इंटरमीडियरी की डिबेट पैन इंडिया चल रही है। गुजरात हाई कोर्ट ने रिसेंटली हेल्ड कर दिया कि सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी, जो प्लेस ऑफ सप्लाई फॉर इंटरमीडियरी कहता है, दैट इज विद इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ, दैट इज विद इन द लॉ, दैट इज नॉट अल्ट्रा वायरस। बॉम्बे हाई कोर्ट जजमेंट, धर्मेंद्र एम जानी, टू डिवीजन बेंच मेंबर, टू जजेस हैविंग डिसेंटिंग व्यूज, एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट व्यूज। एक जज कहते हैं कि ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होगा, और एक जज कहते हैं कि नहीं, सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी के हिसाब से एक्सपोर्ट नहीं होगा। अब मैं आप सबसे और ये गुजारिश गवर्नमेंट के सामने भी रखना चाहूंगा, इंटरमीडियरी अगर है भी, मैंने मान लिया इंटरमीडियरी है भी, उसने सर्विस किसको दी? ए यूएसए। उसकी सर्विसेज का बेनिफिट किसको मिला? ए को मिला। ए के इंस्टेंस पे हम बोलते हैं ना रेसिप्रोसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एट हुज इंस्टेंस सी हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज। सी हैज प्रोवाइडेड द सर्विसेज फॉर and on behalf of A only. Maybe these services are being delivered in India, but for the contract which I have, C is having with A in USA. Ultimately, these services were performed for and on behalf of A, who is ultimately recipient of service. यही है ना?
ना आपने प्लेस ऑफ सप्लाई में प्रोविजन डाल दिया कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी लोकेशन ऑफ सप्लायर एज पर सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी, और ये भी कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन फ्रॉम सर्विस टैक्स रेजिम डिस्प्यूटेड। जीएसटी आपने कह रखा है डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मैं तो थीम की बात कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। जीएसटी इज बीइंग कंसीडर्ड एज ए डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अगर ये कॉन्सेप्ट है तो इंटरमीडियरी अगर है भी तो ये सर्विसेज तो ए फॉर यूएसए के लिए दी गई हैं। इट हैज ट्रैवल्ड आउटसाइड इंडिया। These services are given for and on behalf of A only, and at the instance of A only, reciprocity of contract coming from A only, consideration is flowing from A only. Just because मैंने B के लोकेशन पे जाके दे दी या B को आइडेंटिफाई कर लिया, मैं इंटरमीडियरी हो गया और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होगी। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज नहीं होगी, आप जीएसटी लगाने की बात करते हैं 18%, और फिर उसमें डिस्प्यूट ये भी है कि इंट्रा होगा या इंटर होगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगेगा या आईजीएसटी लगेगा। 18% से आपने एक्सपोर्ट को इनकॉम्पिटिटिव बना दिया। अब मैं इस सिचुएशन में देखिए कि जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सी ए को सर्विस दे रहा है, मनी इज कमिंग इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया, बट आप इसको एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ट्रीट नहीं करते। एक रिवर्स केस इसका करूं अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर इसी सिचुएशन को हम रिवर्स कर देते हैं, मान लीजिए रिवर्स कर देते हैं, अब इंडियन सप्लायर है ए, अब वो सी इन यूएसए कांटेक्ट करता है, सी से बोलता है कि मैं इंडिया से माल सप्लाई करूंगा यूएस में, आप कस्टमर आइडेंटिफाई करो। सेम एग्जांपल, तो ए इंडियन सप्लायर है, इंडियन मैन्युफैक्चरर है, गोइंग टू सप्लाई टू बी इन यूएसए। अब बी को आइडेंटिफाई किया सी ने, बी को डिग आउट किया, बी कस्टमर बना, सी ने ए को बताया इंडिया में कि भाई आप बी को सप्लाई कीजिए, तो ए ने बी को यूएसए में सप्लाई किया, सप्लाई ऑफ गुड्स। अब सी इज ओनली अरेंजिंग एंड फैसिलिटेटिंग, यही है ना, सी इंटरमीडियरी हो गया। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप भी सोचना स्टार्ट कीजिए, सी ने किसको सर्विस दी? सी यूएसए में जो है उसने सर्विस किसको दी? ए इंडियन सप्लायर इन इंडिया, उसको दी। क्या इंपोर्ट ऑफ सर्विस कहलाएगा? क्या रिवर्स चार्ज लगेगा? विद रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल, आरसीएम इज एप्लीकेबल, एम आई राइट? फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज 3 कंडीशन, सप्लायर आउटसाइड इंडिया होना चाहिए सी, रिसिपिएंट इंडिया में होना चाहिए विच इज ए, तीसरी कंडीशन प्लेस ऑफ सप्लाई मस्ट बी इन इंडिया फॉर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिवर्स चार्ज लाइबिलिटी। बट प्लेस ऑफ सप्लाई अगर हम सेक्शन 13 सबसेक्शन 8 क्लॉज बी ऑफ आईजीएसटी एक्ट देखें तो लोकेशन ऑफ सप्लायर यूएसए होगा, तो यानी वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो इंडिया में होना चाहिए वो सेटिस्फाई नहीं करता, देयर बाय देयर इज नो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, नो रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल। इस केस में मेरी कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज ए इंडिया से सी यूएसए को दे रहा है, बट रिवर्स चार्ज आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। Convertible foreign exchange, one of the important subject matter, and destination based consumption tax, importantly preamble of GST law. ए इंडिया ने सी यूएस की सर्विस ली थी तभी वो माल बेच पाया, तो ए ने बकायदा अगर डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स की बात करें ना, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो फिर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन को चेंज करने की ज़रूरत है। इस सर्कुलर में मैं ये चाह रहा था, जो मुझे था कि क्लैरिटी आएगी, वी विल गेट द क्लैरिटी, बट उन्हें ऐसी कोई क्लैरिटी नहीं दी। यानी जो अब बॉम्बे हाई कोर्ट में धर्मेंद्र एन जानी का केस जो डिस्प्यूटेड और डिबेटेड है, लिटिगेशन विल कंटिन्यू एंड इट विल कंटिन्यू ऑन थीम एंड थंब रूल ऑफ व्हाट इज डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, whether this place of supply provision is contrary as per destination based consumption tax,
I'm sure this is the debated one, litigated one. As per me, in my humble submission, if it is destination based consumption tax, तो मैंने पहले जो एक्सपोर्ट के एग्जाम्पल आपसे डिस्कस किए वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होने चाहिए थे, उस पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए. और रिवर्स केस जो इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का मैंने कहा, आप रिवर्स चार्ज में देन डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट पे जरूर लगाइए प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर इंडिया में हो जाएगी. That will provide the clarity. That is the thumb rule that we should follow if at all we are saying GST is a destination based consumption tax. So this is on intermediary as per circular number 159 dated 20th September 2021. I'm trying to, diagnose the circular and the clarification as provided. Having certain contradiction मैं आपके सामने रख रहा हूँ and discussing with all of you. So lot many changes are being announced in this 45th GST Council meeting. I continue to be diagnosed each of the subject matter as clarified. जैसे भी clarification आएगा मैं आपके सामने separate video के जरिए I will continue to present before you. Thanks for watching and stay tuned. Subscribe to YouTube channel, so as and when I'm posting new video, you are being notified, and then you can watch those videos, which is the value addition, and we all are trying and putting our humble submission to the government as well, what correction we all are looking as a trade, industry and commerce to see GST is a good and simple tax. Thanks for watching. Thank you very much.